الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں میں باکمال، فضل و شرف میں ممتاز، ایمان و یقین میں فائق اور زہد و تقوی کے بلند مراتب سے مزین ایک انتہائی پارسا خاتون تھی۔ قرآن پاک میں عورتوں میں فقط آپ ہی کا ایک نام مریم مذکور ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام سے منسوب اپنے کلام پاک میں ایک سورت مریم رکھی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ کی ولادت باسعادت اور ابتدائی بچپن کے کچھ حالات کا قرآن پاک، احادیث نبویہ اور اقوال مفسرین کی روشنی میں مختصر بیان ہوگا۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت آل عمران۔ آل عمران کا معنی ہے اولاد عمران۔ یہاں عمران سے مراد آپ ہی کے والد بزرگوار ہیں، جو بڑے دیندار، تقوی شعار اور زہد و تقوی کی بلند مثال تھے۔ اسی زہد و تقوی کی وجہ سے بیت المقدس میں نماز کی امامت کے لیے آپ کو امام مقرر کیا گیا تھا، اور آپ کی اہلیہ حنہ بنت فاقوس وہ بھی بڑی دیندار، پارسا اور انتہائی نیک خاتون تھی، اور یہ دونوں میاں بیوی حضرت عمران اور حضرت حنہ بنت فاقوس اپنی نیک نامی، بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور بکثرت عبادات کی وجہ سے بنی اسرائیل میں مقبول اور محبوب تھے۔ حضرت عمران یہ صاحب اولاد نہ تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت حنہ بنت فاقوس انہی اولاد کی بڑی تمنا اور خواہش تھی۔ ایک دن یہ اپنے گھر کے صحن میں درخت کے نیچے بیٹھی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ درخت کی شاخ پر طائر یزق فرقہ، ایک پرندہ اپنے ننھے بچے کو اپنے منہ سے دانہ کھلا رہا ہے۔ فاشتہت الولد، اس خوشنما منظر سے ان کے دل میں اولاد کی تمنا پیدا ہوئی۔ فدعت اللہ عز وجل ان یہبہا ولدا، تو انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ ان کی دعا دل سے نکلی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول فرمایا، آثار ظاہر ہوئے اور انہی حمل ٹھہر گیا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت کہ اس دوران ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے یعنی حضرت حنہ بنت فاقوس نے جنہی لڑکے کی تمنا اور توقع تھی، اللہ کے دربار میں یہ نظر مانی کہ اب مجھے جو اولاد ہونے والی ہے میں اسے بیت المقدس میں دینی خدمات کے لیے اللہ کے واسطے وقف کر دوں گی۔ قرآن پاک میں ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پروردگار میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں ہر طرح کے کاموں سے اسے آزاد کر کے تیرے لیے، تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، میری اس نظر کو قبول فرما۔ پھر جب تولد ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی۔ قرآن پاک میں ہے، انہوں نے حسرت اور افسوس سے دربار الہی میں کہا،
रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मौला मुझे ये बेटी हुई है, वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, हालांकि अल्लाह बेहतर जानते हैं, खूब जानते हैं कि क्या तवल्लुद हुआ है, क्या पैदा हुआ है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का जो कवि और ताकतवर होता है वो लड़की की तरह नर्म व नाजुक और माहवारी के अय्याम से दो चार नहीं होता है। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, और मैंने अपनी इस बच्ची का नाम मरियम रखा है। इब्रानी जबान में मरियम का माना कादिम के हैं। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, मौला मैं इसे और इसकी ज़ुर्रियत को, इसकी नस्ल को शैतान मरदूद से हिफाजत के लिए तेरी पनाह में देती हूँ। इस तरह हजरत हन्ना बिन्त फाकूज ने दरबार इलाही में हसरत और अफसोस का इजहार किया कि मौला ये बेटी हुई है, मुझे तवक्को बेटे की थी, इसीलिए मैंने मन्नत मानी थी कि उसे बैतुल मक़दिस में खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। अब मेरी नजर कैसे पूरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस रंजो गम को ये कहते हुए दूर कर दिया कि हमें बैतुल मक़दिस में दीनी खिदमात के वास्ते ये बेटी ही कबूल है। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, उनके परवरदिगार ने उसे बेहतर तरीके से कबूल किया। व अंबतहा नबातन हसना, और बेहतरीन अंदाज से उनकी नशोनुमा और तरबियत फरमाई। फिर जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 3 बरस की हुई तो उनकी वालिदा हन्ना बिन्त फाकूस दीनी खिदमात के वास्ते वक्फ करने के लिए इन्हीं बैतुल मक़दिस ले गई, जिन्हें देखकर बैतुल मक़दिस के सभी कादिम, जिनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी थे, बड़े खुश हुए और सबने ये चाहा, बल्कि पुरजोर मुतालबा किया कि ये बच्ची हमारी कफालत और जिम्मेदारी में दी जाए कि ये हमारे सरदार इमरान की बेटी है। सबका मुतालबा शदीद था, इत्तेफाक नहीं हो पाया कि ये लड़की किसकी कफालत में रहे। यहाँ तक के कुरा अंदाजी की नौबत आ गई और कुरा की ये सूरत तजवीज़ पाई कि सभी खुद्दाम अपने तौरेत के लिखने के कलमों को दरियाए उर्दुन में डाल देंगे और जिसका कलम पानी की सिमत में बहने के बजाय मुखालिफ सिमत में बहेगा, ये बच्ची उसकी कफालत और जिम्मेदारी में दे दी जाएगी। चुनांचे ऐसा किया गया। अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के मर्जी से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलम मुखालिफ सिमत में बहने लगा। इस तरह ये बच्ची हजरत मरियम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफालत और जिम्मेदारी में दे दी जाती हैं। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में इस बच्ची के खालू भी थे, यानी उनकी अहलिया और इस बच्ची की वालिदा दोनों बहनें थी। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में खुद्दाम के लिए जो कमरे और खलवत खाने बने हुए थे, उनमें एक मखसूस और महफूज कमरे में हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा और उस पे ताला लगा दिया और मौका ब मौका देखभाल, दीनी तालीम और तरबियत के लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के यहाँ हाजिर होते थे। और हजरत मरियम दिन भर इबादत इलाही में मसरूफ रहती और जब रात होती तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अपने घर ले जाते, जहां वो अपनी खाला के यहाँ आराम करती और रात गुजारती। एक मर्तबा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वहां बेमौसम फल रखे हुए हैं। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। इन्होंने सोचा मेरे अलावा
इस कमरे में कोई आता नहीं है, मैं कमरे को ताला लगा के जाता हूं, तो फिर यहाँ किसने ये फल पहुंचाए होंगे। और मजीद ताज्जुब हुआ कि ये वो फल हैं, बाजारों में भी ये फल मौजूद नहीं है, इसलिए कि इन फलों का मौसम नहीं है, ये बेमौसम के फल हैं। इन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आ गए। एक तो इनका मौसम नहीं है, और दूसरा मेरे अलावा यहाँ कोई आ सकता नहीं है। एक तो इनका मौसम नहीं है, और दूसरा मेरे अलावा कोई यहाँ आ सकता नहीं है, और मैंने इन फलों को लाया नहीं है, तो फिर ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा ये अल्लाह के खजाने से आए हैं। इस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी अंदाजा हो गया कि हजरत मरियम अल्लाह के यहाँ खास मकाम रखती हैं। इस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी, इबादत और ज़ुहद व तक़वे से अल्लाह के यहाँ कुर्ब पाने लगी। फिर एक वक्त वो भी आया कि मलाइका ने, अल्लाह के फरिश्तों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरियां सुनाई। कुरान पाक में है, फरिश्तों ने कहा, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी, ऐ मरियम अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें चुन लिया है, मुंतखब किया है। व तहरकी, और अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाई है, हर तरह के गुनाहों से महफूज रखा है। वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, और जहां भर की औरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजीलत, फौकियत और शर्फ बख्श कर मुमताज किया है। और आगे मलाइका ने कहा, या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्राकीन, ऐ मरियम खुशी खुशी अल्लाह की बंदगी और इबादत करो, और सजदे करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलाइका से बशारतें मिलने लगी। फिर जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जवान हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी कुदरत का एक निशान बनाया कि बगैर किसी मर्द के दखल के अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये एक तफसीली वाक़या है, इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में इसका मुज़ाकरा होगा। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरानी इन वाक़यात से नसीहत, मौइज़त और दुरूस हासिल कर लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।